اہم بیٹھک سے پہلے اہم ملاقاتیں، وزیر اعظم سے امریکی اور ایرانی وفود الگ الگ ملے۔ شہباز شریف سے نائب امریکی صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے دونوں فریقین کے درمیان پیش رفت میں اپنی معاونت جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ ملاقات میں امریکی صدر کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی بھی اہم ملاقات۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی موجود۔ وزیر اعظم نے مذاکرات میں شرکت پر ایران کے فیصلے کو سراہا۔ پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بامعنی نتائج کے لیے سفارتی رفتار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امن و استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور محسن نقوی شریک۔ عالمی امن ہدف اسلام آباد ٹاکس کا اہم مرحلہ آ گیا۔ امریکہ اور ایران کے وفود میں امن مذاکرات۔ امریکی نائب صدر کی قیادت میں وفد اسلام آباد میں موجود۔ جے ڈی وینس کا پرتپاک استقبال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خوش آمدید کہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی موجود۔ ایران کے اعلیٰ سطح وفد کا بھی اسلام آباد میں پڑاؤ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خوش آمدید کہا۔ اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد میں شامل۔ اسحاق ڈار نے کہا امید ہے فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور سفارتی مکالمے کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ڈیل کا اہم ترین پوائنٹ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی۔ رجیم چینج امریکہ کا مقصد نہیں تھا لیکن پھر بھی ہو گئی۔ آبنائے ہرمز بہت جلد کھل جائے گی۔ ہم ویسے بھی آبنائے ہرمز کو استعمال نہیں کرتے۔ ایران سے مثبت بات چیت چاہتے ہیں۔ ایران نے کھیلنے کی کوشش کی تو مذاکراتی ٹیم کا رویہ مثبت نہیں ہوگا۔ ایران خیر سگالی کے ساتھ آیا ہے مگر امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف کہتے ہیں امریکہ حقیقی معاہدہ پیش کرے، ایران کے حقوق تسلیم کرے تو معاہدے کے لیے تیار ہے۔ باقر قالباف کا امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ۔ مزید کہا یہ طے شدہ نکات تھے جن پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے، اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کی لیڈرشپ میری پرخلوص دعوت پر اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں، جہاں پر امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں گے، مگر اب کٹن مرحلہ دیر پا جنگ بندی کا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے۔ پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ خلیج میں اب جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ امریکی اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں پاکستانی قیادت نے اعتماد کے ساتھ فریقین کو جنگ بندی کے لیے راضی کیا۔ جنگ کے شعلے بجھانے میں فیلڈ مارشل کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تاریخ سید عاصم منیر کے کردار کو سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ حماس کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم، پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کہا یہ بات چیت جنگ کے مکمل اور جامع خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہو سکتی ہے۔ خطے میں استحکام کو فروغ ملے گا اور عرب اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद अंतोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। फरीकैन सिफारती मौके से फ़ायदा उठाते हुए खुलूस नीयत के साथ बातचीत करें ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और दुश्मनी के दोबारा आगाज़ को रोका जा सके। फरीकैन ने मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ाए तो एक देरपा और जामे मुआहदे की जानिब पेशरफ्त मुमकिन है। पाकिस्तान एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमरीका तनाज़े में सिफारतकारी को भरपूर मौका देने की ज़रूरत है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अपनी देरीना मुस्बत रिवायत को बरकरार रखकर सिफारती कोशिशें अंजाम दी। सिफारतकारी के इस अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की हिमायत हासिल रही। अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में इस्तकबालिया बैनर्स आवेज़ा किए गए, इमारतों पर कौमी परचमों की बहार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रावलपिंडी में आज भी आम तातील, सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे बंद। इमरजेंसी सर्विसेज मामूल के मुताबिक फाल रहेंगी, जबकि जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल की गई है। खाली ऑयल टैंकर्स बड़ी तादाद में अमरीका की जानिब रवा दवा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, ऑयल टैंकर्स दुनिया का बेहतरीन तेल भरने के लिए अमरीका आ रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों से ज़्यादा तेल हमारे पास है। हमारे तेल का मयार भी दूसरों से बेहतर है। हम आपके मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में नुमाया बेहतरी, दुनिया के 100 बेहतरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पासपोर्ट 126वें नंबर से तरक्की करके 98वें पोजीशन पर पहुंच चुका है। भारतीय गोदी मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने एंकर और पूरे मीडिया को खरी खरी सुना दी। कहा, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। भारतीय मीडिया गैर ज़रूरी तौर पर झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा कि ज़िंदगियों, रोज़गार और आलमी मईशत से जुड़ा संजीदा मामला है। इसे भारत पाकिस्तान में तनाज़े में बदलना इंतहाई अफसोसनाक है। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने भारतीय मीडिया के रवैये को स्कूल के बच्चों जैसा करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक हसास सिफारती मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकती हैं। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर फ़ख्र है। ईरान और अमरीका को जंग से मुज़ाकरात की मेज़ तक लाना बड़ा एजाज़ है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का एक्स पर बयान। कहा, जारी तनाज़े से आलमी मईशत, तवानाई बहरान और महंगाई पर असरात पड़ने का खदशा था। जंग की तवालत से करोड़ों अफराद के खत गुर्बत से नीचे जाने का खदशा था। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी आलमी मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। तारीख जंग नहीं, जंगे रोकने वाली क़यादत को याद रखती है। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली में तेज़ी। मुल्क भर के एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त में इजाफा। लाहौर से 12 परवाज़ें खलीजी ममालिक रवाना। कराची से 16 परवाज़ें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 18 परवाज़ें, मुल्तान से 6 परवाज़ें, पिशावर से 8 परवाज़ें रवाना। इत्तेहाद एयर, कतर एयर, फ्लाई दुबई, अमारात एयर और एयर अरबिया की परवाज़ें भी शेड्यूल के मुताबिक इजाफा। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 135 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये मुकर्रर, पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि डीजल की कीमतों में कमी से ज़र शोबे को नुमाया रिलीफ मिलेगा। आम आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात में भी कमी आएगी।
पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% कमी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से आज खुद किरायों में कमी की गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से किरायों में 40% कमी कर दी गई। किरायों में मजीद कमी के हवाले से आज महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 13 से 18 अप्रैल 2026 तक वाशिंगटन DC में मुनक़िद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना IMF के आला हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी हुकूमत के आला हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की शानदार खारजा पॉलिसी के बाइस गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तेज़ी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। 100 इंडेक्स में हफ्तावार 17 नफसियाती सतह बहाल हुई। सरमायाकारों को हफ्तावार 1748 अरब रुपए का ज़बरदस्त मुनाफा हासिल हुआ। 100 इंडेक्स में हफ्तावार 16,793 पॉइंट्स के साथ 11.2% का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स की नफसियाती सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 16,08,290 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 1,47,771 पॉइंट्स रही। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार रिपोर्ट तलब की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लोकल गवर्नमेंट को हर शहर और मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स पर मुसलसल पेशरफ रिपोर्ट देने की हिदायत। 51 शहरों में तरक्याती काम जारी। डीसिल्टिंग, जेटिंग और डी वॉचिंग मशीनरी की फराहमी का फैसला। मरियम नवाज का कहना है कि 2 साल में माजी के 5 साल से ज्यादा काम हुआ है। अपर कोहिस्तान स्कैंडल एहतसाब अदालत का 31 अक्टूबर 2025 का फैसला गैर कानूनी करार। पेशावर हाई कोर्ट स्कैंडल से मुताल्लिक मुंजमद असासों के खिलाफ दायर अपीलें। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने केस एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दिया। 1 माह में एतराज़ात पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। लिखा, बगैर इंक्वायरी और शवाहिद के एतराज़ात मुस्तरद करना शफाफ ट्रायल के हक की खिलाफ वर्जी है। फरीकैन को सुनने और शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। हतमी फैसले तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ जायदाद के कब्जे से मुताल्लिक कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए। ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान में वैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात सिख यात्रियों की पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। बेहतरीन इंतजामात पर सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वैसाखी मेले में सिख यात्रियों को जी आयानू। कहा, सिख यात्रियों की खिदमत और तवाज़ुन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।